In a world where heart disease is one of the biggest challenges, there's one doctor who has dedicated his life to changing that story. Today, we sit here with a visionary cardiologist, an author and founder of Saul Heart Program, Dr. Vimal Chhajar. Get ready for an eye-opening conversation on how simple lifestyle changes can save lives, prevent diseases, and transform the way we think about health. This isn't just a podcast. It's a journey to a healthier heart and a stronger you. So, here we go. So, if you can just make us understand and make the audience understand कि heart without heart surgery कैसे लोग treat कर सकते हैं heart disease को? See, heart disease is self-created disease. You are eating lot of fat, your blood level of cholesterol triglyceride high, they are choking your tube. So you are dying by choking yourself and by eating the food which you should not eat. So diet is a major thing that creates the blockage. Plus, obviously, if they have high blood pressure, high blood sugar, they have no exercise, they don't eat fruits and vegetables. So there's a multiple causes which lead to heart problem. And the hospitals wants to make a makeshift arrangement, immediate arrangement that, oh, your tube is closed, I will put a new tube. No point, because if we can stop the blockage from growing and if you can reverse the blockage, there is no need of a surgery. And now it is proven that the blockages can be reversed. So with a complete lifestyle change, with medical management, with cholesterol reduced, triglyceride reduced, blood pressure reduced, sugar reduced, plus the food without oil, no non-veg, and exercise and weight reduction, all of them together can not only prevent heart disease but reverse heart disease. And we have been reversing heart disease for millions of people all across the world, and it is now a proven process. So why do we need a surgery if we can avoid it? Exactly. That's what we have been hearing. So like, was there a turning point for you to take this decision? See, I was a very confident medical doctor when I became a doctor, because we had seen everything ourselves. We cut the dead body, we found everything that the books are writing there. Then we checked out all the medical management. We tried giving medicines to the animals, and we saw the effects, and we knew that all the medicines work very well. And then we treated patients with malaria infection, and I found all the patients are improving. So I was a very confident doctor. I came from Calcutta to Delhi in 1986, and I was working in a hospital called Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. One particular incident changed my life. एक पेशेंट हमारे पास आए, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी. I gave him medicines, but I did not give him any other advice. He was eating wrong food, wrong exercise, he was smoking. His blockages kept on increasing. Every time he would come, he would have angina. I will increase the medicine. After 15 tablets per day, he developed a heart attack and he was admitted in the same hospital in the ICU. We were there, we tried, all the doctors came, the senior most. We treated that patient for 3 hours continuously, giving injection after injection, electric shock, and ultimately the patient died. And then I started thinking, why did the patient die? And initially the thought was I gave him wrong medicines. I tried and I opened the file, I found that the medicines were all correct. Then why did I go wrong? And then suddenly I realized his food was full of fat, he was eating non-veg, he was smoking. All that created the blockage more and more, and he got a heart attack. And that day suddenly I realized that everything is going wrong. I talked to my senior most boss. I said, sir, what is this treatment where the disease grows? We are treating and the disease is growing. He said, Vimal, this is the system. You can't change the system. It will work like that. You have given your medicine. What the patient will eat, not eat, is his prerogative. We are not going to interfere. We are doing medical management. We have done it. If the blockages grow, you admit him. If the blockages grow, he gets a heart attack, you admit him. And if he dies, give a certificate. That's our duty. Oh my God. And that day onwards, my life changed. I made up my mind, every heart patient, I have to educate them first and then give medicine. So before giving medicine, I would tell him, look, ये दवाई जिंदगी भर लोगे तब भी ठीक नहीं होगे. अगर ठीक होना चाहते हो, कल से वॉकिंग शुरू करो, खाना पीना शुरू करो. और वो जो चेंज मैंने लाया, that was my turning point.
तो तब जाके साउल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आई गेस। आई डिड माई MD. ड्यूरिंग MD मैंने यही रिसर्च लिया कि हार्ट के मरीजों को क्या क्या सिखाना चाहिए, योग भी सिखाना चाहिए, मेडिसिन भी देना चाहिए, खाना पीना भी चेंज करना चाहिए। फिर मैं दिल्ली एम्स आया और वहां पे भी यही किया, और वहां पे हमारी रिसर्च ने बताया कि ये काम हो सकता है, रिवर्सल इज एक्चुअली पॉसिबल। ओके, सो ये सारा चीज आपका स्टार्ट हुआ एम्स से, और फिर आपने साउल मूवमेंट स्टार्ट किया। 6 साल मैंने एम्स में, आई वॉज अ सीनियर रेसिडेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहां पे हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया, मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज। वहां पे हमने किस तरह से सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं एक साथ। रिवर्सल और नॉन रिवर्सल में फर्क है, ऐसा नहीं कि कोई हार्ट का मरीज ट्राई नहीं कर रहा है, बट वो पूरा नहीं कर रहा है। पूरा मतलब कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल चाहिए, ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल चाहिए, BP भी कंट्रोल चाहिए, शुगर भी कंट्रोल चाहिए, खाना पीना भी चेंज चाहिए, वॉकिंग भी चाहिए, योगा भी चाहिए, स्ट्रेस भी कम होना चाहिए, स्मोकिंग भी बंद करना। पर लोग क्या करते हैं, दो चार करके बोलते मैंने किया, मैंने ट्राई किया, लाइफस्टाइल काम नहीं कर रहा है। You have to do all of them together and you have to do all of them at the best possible things. जैसे कोलेस्ट्रॉल की रेंज 130 से 200 है, तो मुझे 129 चाहिए। अच्छा। खाने में अगर तेल कम करना है, कम हर को मालूम है तेल कम खाना चाहिए, मैं बोलता बंद करो। कम नहीं, कम से कम, बोलते कम से कम का मतलब 1 बूंद है, 1 बूंद है तो 1 बूंद ही ना लो। तो हमने देखा अगर पूरा तरीके से कोई ठीक से कर ले तो पूरी बात हो सकती है, और ना ब्लॉकेज बढ़ेगी और ब्लॉकेज रिवर्स होगी। हमने लैक्स ऑफ पेशेंट्स का करवाया। आज इंडिया में हम लोग 140 सेंटर चला रहे हैं, ओनली बिकॉज वी हैव बीन सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स फॉर थाउजेंड्स एंड पीपल, जिनको बोला गया कल तक मर जाओगे, और वो 20 साल 25 साल हमारे संग चल रहे हैं। तो वो एक मिथ था कि नहीं बाईपास नहीं कराओगे तो मर जाओगे, एंजियोप्लास्टी नहीं कराओगे मर जाओगे। मैं तो देख रहा हूँ मेरे 25% पेशेंट हुए हैं जो बाईपास एंजियोप्लास्टी करवा के फिर से रीब्लॉकेज लेके आए हमारे पास। अरे बाप, ऐसा भी होता है भर के। देयर आर पीपल हु हैव डन 5 स्टेंट्स 7 स्टेंट्स, 2 बार बाईपास सर्जरी, 3 बार स्टेंटिंग। बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी इज अ टेम्पोररी मेथड। एक ड्रेन जैम हो गया, आपने नई ड्रेन बना दी, तो नया भी जैम हो जाएगा। आपने एक नाली को साफ कर दी तो फिर कचरा डालोगे फिर बंद हो जाएगा। तो ये दोनों टेम्पोररी रिलीफ है। हॉस्पिटल को इससे पैसा मिलता है, उसको प्रमोट करते हैं, खाने पीना रहन सहन उसको कोई प्रमोट करता नहीं है क्योंकि उसमें पैसे नहीं है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था। वी एजुकेटेड एवरीबडी। हमने यूट्यूब में इतनी वीडियोस, 1400 वीडियोस हमने डाल के रखे हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं हर आदमी तक ये बात पहुंच जाए कि हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट भी किया जा सकता है, रिवर्स भी किया जा सकता है। There is no need of surgery or angioplasty. That's really good. तो डॉक्टर साहब, अगर हम लोग ये साउल सेंटर के बारे में जानना चाहें तो इंडिया में कितने सेंटर्स हैं इसके, और दुबई में भी आप खोल रहे हैं? हम लोग की जो मेन सेंटर है अब देहरादून शिफ्ट हो गया। वहाँ पे हमारी एक रिसोर्ट है, रिसोर्ट में एक हॉस्पिटल टाइप का बना के रखा है। वहीं पे मरीज को एडमिट भी करते हैं और वहीं पे ट्रीट करते हैं। अच्छा। और उसके साथ हम लोग उनको 40 दिन रखते हैं, उनका खाना पीना चेंज करते हैं, उनको नेचुरल बाईपास करवाते हैं, उनको दवाइयाँ भी देते हैं। तो हम लोग इस तरह के सेंटर बनाए हैं, और हम लोग की जो सेंटर्स है इंडिया में 140 जगह है, और 3 बांग्लादेश में, काठमांडू में भी है। अच्छा। और दुबई में भी हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं ये सेंटर। तो दुबई में भी मैं समझता हूँ बहुत सारे हार्ट के मरीज हैं जो बॉम्बे जाके, बेंगलोर जाके, कोयम्बटूर जाके, वहाँ चेन्नई जाके ट्रीटमेंट कराते हैं। उनको जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे हो जाएगी ट्रीटमेंट। और ये अगर आप देखें तो सर्जरीज बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो ये रीचेबल है क्या? देखिए, सर्जरी एक्सपेंसिव है वो भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बॉडी को काटता है वो इम्पोर्टेंट है। बॉडी जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये नेचर का बेस्ट गिफ्ट है। नेचर का कोई भी चीज को छेड़खानी मत करो। एक फूल को आप तोड़ दो, वापस जोड़ नहीं सकते। एक मोबाइल फोन के सारे पार्ट्स खोल के वापस जोड़ के चालू करवा सकते हो। एक फ्रिज के सारे पार्ट, देखिए फ्रिज में पीछे स्क्रू डाल के रखा हुआ है, ये आप खोल सकते हो। हमारे बॉडी में खोलने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है। आपको अगर अंदर जाना है काट के ही जाना पड़ेगा, और वो काट के जाएंगे तो इतनी सारी साइड इफेक्ट है। मैं लोगों को बोलता, नेचर की पैकिंग को सोचो। आप एक अनार की पैकिंग खोल के देखो, सारे दाने खोल के देखो और फिर लगा लो, लगा ही नहीं सकते आप। तो ये बॉडी को छेड़ने से पहले यू मस्ट थिंक वेदर इट शुड बी अगेन रिपेयर्ड। A blockage takes 30-40 years to grow. After bypass surgery 5 साल में बंद हो जाती है. After angioplasty closes 1 year, 2 year, 6 months. I've got huge number of patients who have below 1 year they have reblocked again with a stent.
तो मेरे ख्याल से ये दोनों ट्रीटमेंट एक्चुअल में अच्छी चीज ही नहीं है, पर लोग करवा रहे हैं क्योंकि उनको कंपेल किया जाता है। कोई जान के नहीं करता, हॉस्पिटल वाले उनको डराते हैं कि भाई आप मरने वाले हो, नहीं कराओगे तो मर जाओगे। और मरता कैसे है? ब्लॉकेज बढ़ेगा तब हार्ट अटैक होगा, अगर ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं तो हार्ट अटैक नहीं होगी, और ब्लॉकेज घटा लो तो हार्ट अटैक होगी नहीं। तो वी टॉक अबाउट रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज, और अगर वो हमारी बात 80-90% फॉलो करता है तो प्रिवेंशन तो पक्का ही होगा। तो आई हैव हर्ड दैट यू आर अ एडवोकेट ऑफ जीरो ऑयल डाइट, राइट? तो कितने लोगों ने ये अपनाया है और हाउ डज इट वर्क? मैं समझता हूँ करोड़ों लोगों ने। अच्छा। मैं आपको बता दूं, ये जो जीरो ऑयल का कंसेप्ट बहुत सिंपल सी, हार्ट की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस सब में रिस्पॉन्सिबल तेल है। तेल को ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, मेडिकल नेम ऑफ ऑयल इज ट्राइग्लिसराइड। लेकिन आजकल बोलते हैं कि हेल्दी ऑयल्स होते हैं। हाँ, वो अभी आता हूँ मैं वहां पे। जो तेल होती है वो होती है ट्राइग्लिसराइड, और जितने तरह के तेल है सारे ट्राइग्लिसराइड है। फर्क बहुत मामूली है। कितनी मामूली है समझा दूं, एक गिलास पानी देता हूं मैं, बोलता पी के बताइए ये बिस्लेरी है, माई दुबई है, या एक्वाफाइना है, या एक्वागार्ड है। तो आप बोलोगे सर पता नहीं चल रहा, बिकॉज दे आर सेम। और मैं बोलता हूँ 3-4 सब्जी बना लो, एक सनफ्लावर में, एक कैनोला में, एक ग्राउंडनट ऑयल में, एक सोयाबीन ऑयल में, एक ऑलिव ऑयल में, और आदमी को पूछो कौन सा किस ऑयल का बना हुआ है, वो नहीं बता पाएंगे, बिकॉज नेसेसरीली दे आर द सेम। अगर वो फैट सारे एक ही तरह का है तो मतलब डिफरेंस इज 1 or 2%। तो उस जार्गन में लोग फंसे रहते हैं। मैं बोलते एक भी बूंद डालो मत। और तेल का लकीली टेस्ट भी नहीं है। आप किसी किचन में चले जाए जहाँ तेल यूज होता है, जहाँ गैस का चूल्हा रखा, उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, चिप चिप करेगा। और 1 महीना साफ नहीं करिए, लेयर जम जाएगा। वही हार्ट के अंदर जम रहा है, आपके ट्यूब को चोक कर रही है, और आप उसको ही डाले जा रहे हो। और लकीली तेल में टेस्ट भी तो नहीं है। मैं बोलता हूँ एक चम्मच मुंह में डाल के बताओ कैसा टेस्ट है। तेल का एक ही रोल है, वो मसाले को भूनने के लिए यूज होते हैं। हम मसाले को पानी से भून देते हैं, बस पानी को एक साथ नहीं दबाना है, डालना है, छींटे छींटे देना है। और ये जो कुकिंग है ये बहुत बढ़िया होता है। मैं आपको 1 मिनट में समझा सकता हूँ, अगर जो भी सुन रहे हैं उनको मालूम हो जाए कैसे बनाया जाता है। देखिए, जीरा, हल्दी, धनिया, ये 3 चीजें जो डायरेक्टली नहीं डाल सकते, उनको भून के ही डालना पड़ेगा। प्याज टमाटर भी अगर भून लेंगे तो स्वाद आएगी। तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कढ़ाई गर्म हो गई, चाहे कोई भी कढ़ाई ले ले, उसमें पहले जीरा डाल के जीरा को भून लेते हैं। जीरा जैसे ही कड़कने लगा उसमें प्याज डाल देते हैं। अगर प्याज नहीं खाना तो टमाटर डाल देते हैं, और उसी के ऊपर सारे मसाले डाल के उसको भूनते रहते हैं। पानी खत्म हो जाता है, छींटे मारते रहते, भूनते रहते हैं। जब ये सारे मसाले भून जाते हैं, हल्दी कच्चा से पक्का हो जाता है, तब इसमें पानी डालते हैं, और वो जो ग्रेवी बना है सेम टेस्ट है, सेम मसाला है, खाली तेल की जगह पानी से बन गई। पैसे भी बचे और अपना हेल्थ भी ठीक रहा, और हार्ट अटैक भी नहीं होगा, मोटापा कम हो जाएगा। ये जीरो ऑयल के बहुत जबरदस्त इफेक्ट्स हैं। इंडिया में हमारी जीरो ऑयल की एक कुकिंग का क्लास चला था, वो 1 मिनट का वीडियो है। इट वेंट वायरल इन इंस्टाग्राम एंड इट हैज गॉट 600 मिलियन व्यूज। 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा है। एंड इट्स बिकम सो पॉपुलर। तो मैं समझता हूँ हर आदमी ट्राई किया है, एक बार बना के देखते बिना तेल के कैसे बनता है। जब इतने बेनिफिट्स है तो व्हाई नॉट? हेल्थ के साथ नहीं खेल रहे हो आप। तो मैं तो हर को रेकमेंड करता हूँ, अब बिना ऑयल का खाना बनाना सीख जाओ। और तेल अननेसेसरी क्यों डालोगे अपने बॉडी में? और वो तेल जाके आज 1/3 ऑफ द हार्ट अटैक डेथ्स आर हार्ट अटैक। अगर वो डेथ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे कम क्या हो सकता है? सही बात है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि डाइट तो है ही, लेकिन उसके साथ स्ट्रेस जो आजकल सबको इतना ज्यादा है, चाहे आप काम बोल लो, चाहे आप घर बोल लो, किसी चीज में भी, तो स्ट्रेस का क्या करें? देखिए, स्ट्रेस को एक प्रॉब्लम है कि इसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते कि भाई इतना किलो स्ट्रेस है, इतना ग्राम स्ट्रेस है, इतना किलोमीटर स्ट्रेस है, वी कैन नॉट मेजर। तो मेडिकल साइंस इसके ऊपर साइलेंट है। पर हार्ट की बीमारी का बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस है। क्यों? स्ट्रेस सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस होते ही बीपी बढ़ती है, स्ट्रेस होते ही शुगर बढ़ती है, स्ट्रेस से फैट भी ब्लड में बढ़ जाता है, एचडीएल कम हो जाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाती है, स्ट्रेस से खाना पीना कंट्रोल नहीं होता है, स्ट्रेस से वॉकिंग बंद कर देता है, स्ट्रेस के वक्त आदमी जो मर्जी खा लेगा। तो ये आप समझ लीजिए स्ट्रेस एक मेजर कारण है हार्ट की बीमारी का। अब स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं जीरो तो नहीं करना है, 50% मिला दो।
और वो 50% स्ट्रेस लाने के लिए हम लोग उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मेरे 10-20 वीडियोस मैंने अपने साउल की वेबसाइट वो यूट्यूब चैनल में डाल के रखा प्लेलिस्ट में, स्ट्रेस कैसे कम हो। तो आदमी अगर उसको फॉलो करे स्ट्रेस कम हो सकता है। पर एक चीज मैं हर आदमी को समझा देता हूँ, हमारे 90% स्ट्रेस फालतू के हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें जिसमें हम उलझ जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज स्ट्रेस रहेगा वो हम नहीं सॉल्व कर सकते। आज कोई का हेल्थ खराब है, ये बड़ा स्ट्रेस है। आज पैसे का कमी है, बड़ा स्ट्रेस है। पर जो छोटे छोटे 2 मिनट लेट क्यों आया, ये गंदा क्यों रखा हुआ है, ये ऐसे कैसे बोल दिया, ये ऐसा कैसे हो गया, सामने वाला गाड़ी क्यों नहीं मूव कर रहा है, नाउ दीज आर स्मॉल स्ट्रेस। इससे लाइफ कुछ नहीं बदलता। ये जगह अगर आप अपने आप को बदल दो कि ये सब मैं इग्नोर करूंगा, आधी स्ट्रेस वहीं कम हो जाता है। तो स्ट्रेस कम होना हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग डिमांड करते हैं आप ऑप्टिमम स्ट्रेस में आ जाओ, जहाँ पे आपके आउटपुट भी अच्छा रहा और आप कंफर्टेबल भी हो। सुबह जैसे थे शाम को वैसे ही होने चाहिए। दिमाग स्ट्रेस कम रहेगा तो वैसे ही रहोगे, नहीं तो शाम तक इरिटेट हो जाता आदमी। जब भी स्ट्रेस ज्यादा होगा आप देखेंगे बाय इवनिंग पर्सन इज एग्जॉस्टेड, इरिटेटेड, इसका मतलब स्ट्रेस ज्यादा कैरी कर रहा है। और अगर शाम को वैसा ही है जैसे सुबह था तो इसका मतलब है उसकी स्ट्रेस कम है। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होके एक हार्ट डिजीज को बिल्ड करते हैं। हार्ट डिजीज को हम लोग बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल, एक कारण नहीं बहुत सारे कारण है और सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब एक चीज और पूछना था, जैसे हम लोग मॉर्निंग में नट्स खाते हैं, बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है, तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं? सीड्स, आजकल सीड्स का भी देखिए नट्स और सीड्स फैट से भरा हुआ है। आप गूगल करिए फैट कंटेंट ऑफ ऑल द नट्स, सबके नट्स के आ जाएंगे, दे आर फुल ऑफ ऑयल। आज काजू में 50% तेल है, आलमंड में 58% तेल है, अखरोट में वॉलनट है 64% ऑयल। ना ऑल दीज ऑयल्स आर गेटिंग डिपॉजिटेड। मैं ऑयल बाहर से बंद कर रहा हूँ और अंदर से ये सब खिला रहा हूँ तो नहीं चलेगा। लॉजिक इज वेरी सिंपल। अगर मैं मूंगफली का तेल नहीं दे रहा हूँ एक बूंद भी, मूंगफली कैसे दे दूंगा? अगर कोई को खर्चा कम करना बोला कैश बंद कर दो, कार्ड से खर्चा करो, तो कहाँ खर्चा कम हुआ? तो ऑल द सेम। तो आपको अगर फैट खत्म करना है हार्ट की बीमारी के चक्कर में तो पूरे ही खत्म। और कोई रिवर्सल करना जरूरी नहीं है, जो आज प्रिवेंशन में भी तो रह सकता है। जिनको आज ब्लॉकेज ज्यादा नहीं है वो प्रिवेंशन में चला जाए। और आजकल तो आप पता भी कर सकते हो आपकी ब्लॉकेज कितनी है बाय सीटी एंजियोग्राफी। आजकल एक सीटी एंजियोग्राफी आ गया इंडिया में, हम लोग 7-8 हजार में करवाते हैं। ऊपर से एक्सरे करके आपको बता देंगे आपकी स्टेज कहाँ पे ब्लॉकेज की। अच्छा, बहुत इजी है, सो इजी। एनीबडी विजिट्स इंडिया, यू गो देयर, any of my Saul centers will recommend you and the cost goes down to almost half. बॉम्बे में 7,500 में होती है, बेंगलोर में 6,500 में होती है, दिल्ली में 7,000 में होती है, और इंडिया में जो भी जगह में ये है सब जगह हमने इसको सब्सिडाइज करवा लिया है। तो साउल के तरफ से हमने करवा लिया है। It is a 5 minutes job to know whether the blockage is there, how much blockage is there, location of the blockage, everything can be found out. तो तार घुसा के एंजियोग्राफी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, that's really nice. This is the latest। मेरे को लगता है लास्ट 20 साल में अगर मेडिकल साइंस में सबसे बढ़िया बात हुई है तो ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आ गई। और वो भी हाफ रेट कॉस्ट, और कोई एडमिशन नहीं है, कोई तार घुसाना नहीं है, और 2 मिनट में आप बाहर आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और डॉक्टर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द यंग डॉक्टर्स हु वांट टू नो अबाउट योर नॉन इन्वेजिव? देखिए ऐसा है, डॉक्टर्स में पढ़ाया तो जाता है ये सारी चीजें, पर वो डॉक्टर्स ना अल्टीमेटली वो हार्ट के हॉस्पिटल के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और बोलते हैं नहीं बाईपास कर लो, एंजियोप्लास्टी कर दो। मैं लोगों को बोलता हूँ अपना लॉजिक यूज करो, पूरी बात को समझो। अगर ब्लॉकेज रिवर्स हो सकता है तो हम क्यों चेंज करें अपना? तो डॉक्टर्स अगर ये सारी बात समझ जाए, इनफैक्ट डॉक्टर समझ भी जाते हैं। आज भी हमारे पास एक डॉक्टर अपनी वाइफ, अपने मदर को, फादर को लेके आए थे। वो बोलती है मुझे समझ है, पर वो अगर हार्ट के हॉस्पिटल में चला जाए तो हॉस्पिटल का प्रेशर रहता है कि आप बोलो बाईपास इंपॉर्टेंट है, एंजियोप्लास्टी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया है कि पूरा इकोनॉमी ड्रिवन हो गया है ये। इट हैज बिकम अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, और कॉर्पोरेट में आपको काम नहीं, आपको केसेस बढ़ाने पड़ेंगे, ऑपरेशन के नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और इस चक्कर में सारा ट्रीटमेंट का लोग ने खराब करके रख दिया। Agree on that. So if you have one message for every household in the UAE and worldwide, what would it be?
देखिए, हार्ट की बीमारी को बचाना चाहिए, और हार्ट के बचाने के लिए आपको 2 और बीमारी को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर एंड शुगर। ये दोनों को कंट्रोल, तीनों को कंट्रोल करना है तो आपको खाना 0 ऑयल का खाना पड़ेगा, नॉनवेज अवॉइड करना पड़ेगा, हर दिन वॉक करना पड़ेगा, और योगा भी करनी पड़ेगी, और अगर उसके बाद भी जरूरत हो तो दवाइयां भी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी जेनेटिक केस है, आपकी खाना पीना कंट्रोल के बाद भी आपकी अगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है तो दवाइयां ले लीजिए, इससे वो कंट्रोल हो जाएगा, तो आपको हार्ट की बीमारी होगी नहीं, और आगे हो भी गया हो तो उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। तो आंसर इज वेरी सिंपल, चेंज योर डाइट, वॉक एवरी डे, स्ट्रेस थोड़ा कम करिए, स्मोकिंग और कोई भी तरह के टोबैको है तो बंद करिए, एंड यू विल बी ऑल राइट। आप अपने आप को खुद मार रहे हो, आपके परिवार वाले अनजाने में आपको फैट खिला रही है और वो मर रहा है हस्बैंड, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हार्ट की बीमारी के लिए परिवार को, अगर घर पे जो खाना बनाते हैं उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। आपकी ये 0 ऑयल वाली रेसिपीज अवेलेबल है? हमारा 0 ऑयल चैनल है यूट्यूब में, 0 ऑयल कुकिंग करके। आप हमारे नाम डाल दीजिए, साउल का नाम डाल दीजिए, इमीडिएटली वो चैनल आ जाएगी, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें हमने हजारों आइटम बना दिया, 50 दिन की मेनू बना दिया विदाउट ऑयल। So everyone, please go to YouTube and check the channel. आप लोग को डेफिनेटली वो रेसिपीज अच्छी लगेंगी, मैंने भी ट्राई किया है एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट टू। थैंक यू सो मच डॉक्टर विमल छाजर, और ये एनलाइटनिंग था हमारे लिए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्लिनिक इन दुबई टू, एंड आई एम श्योर लोगों को समझ में आएगा ये वीडियो, एंड आई एम श्योर दे विल बी नॉट ओनली बी टेकिंग द थॉट्स ऑफ दिस, बट दे विल बी टेकिंग एक्शन टू। Thank you so much.